Hello students, how are you all? I hope you all are good and I wish you be happy and healthy. I know we are meeting after a long gap of 9 days and while I confess, I miss you people. I hope you did the same. Well kids, I'm very grateful and overwhelmed to have your acceptance and your uh, welcoming me on Unacademy Class 6 platform. It's really a nice feeling. Thank you so much. Thank you all the kids for your comments in the comment section and I hope we'll be having a good team together to learn new things and we'll be sharing our knowledge. You can clarify your doubts as and when you want. Maybe during the live sessions or maybe in the comment section of the videos and also I was happy to know that you people are curious to know that when I'll be going live. So yeah, I'll be going live soon and actually I was thinking before going live and they're having discussion on various topics. Let's complete some of the topics through videos so that while on live we'll be having something to discuss and also we'll be discussing the question answers which are there at the back of the chapters and also we'll definitely play a Menti at that time. And if you have any of the doubts regarding the topics that we will discuss through videos, definitely you can ask and clarify your doubts then and there. So this is the strategy for we'll be going for the rest of the topics. Um, and kids, it is really nice and to read your comments in the comment section and I am happy to know that you like my appearance on the video and also I welcome your feedback regarding the content of the topics and also about the pedagogy style. If you think that there can be any other way or something extra that you want for the topic, you can definitely let me know and just feel free to share your things and just feel free to share what you want more in the topics so that we can evolve and we can share our things and we just have a good team together. Okay, so with this moving further, as we know that today's topic is urban administration part 1. Here what I have done actually, I have bifurcated this topic of urban administration into two parts. So in this video, we will just be discussing on the point urban, like the term urban and as we know that urban includes cities. So we will be having a small uh, and interesting knowledge about the topic cities and also some of the interesting facts about Indian cities and also we will be seeing some of the interesting facts about the cities around the globe and we also play a small quiz during the video. So just stay tuned to play the quiz and as the name is urban administration, so definitely we'll going to see in a brief way like what is urban administration, what all includes in urban administration and also we will have a small intro for municipal corporation as well. Okay, and what is municipal corporation, that you will get to know by when we move further with the topic. Okay, so this is it I think and okay, let's move further. Okay, so for new students, I would like to say, I would like to introduce myself. My name is Kanchan Soni and I am a law graduate. I have done my LLB from Modi University, Rajasthan
and I belong to Kota, that is also in Rajasthan. You might be having a question like, why being a lawyer, I'm here as a social science educator in front of you. So I would say, I think Chetan Bhagat sir is also an IITN and IIM, and he is writing novels. He is an author. So yeah, similarly, I'm also here, being with you people, as I am passionate about teaching, and being with kids is something that excites me. And I discovered that approximately 3 to 4 years back, when I was working as a volunteer in an NGO in Jaipur. I was with kids and I was teaching them, and it's really overwhelming experience for me actually. And from there I got to know कि, okay, this is something that I wish to do in my life. So since that time I am with kids at various platforms. I was in schools, I was in coaching institutes, um, being with kids and sharing my knowledge with them. And also I grow with each and every day with my kids. So yeah, till yet, I have taught 2,500 plus students. I have mentored them, and it's really nice and interesting to talk to kids and listen their new ideas, their new concepts about life, and what their philosophy is, and how they are growing basically, what all they are having in their minds and all. So yeah, this is about me. If you wish to know something more, just let me know. Okay, moving further. Okay, so a small drill that we do before beginning our chapter is that I uh, assure you that by the end of the chapter you will be able to answer these topics definitely. Like, you'll have the answer for meaning of urban, then some facts about urban areas, then important cities around the globe, then planning of a city or its infrastructure, what is urban administration, and then we have a small intro of municipal corporation. Okay. Okay, going further. So urban areas. अच्छा, I know, मुझे पता है, हमारे previous video में we have already discussed about rural areas and urban areas, right? And वहाँ पे हम ये already समझ चुके थे कि urban areas का मतलब होता है जहाँ पे cities हो, जो कि area developed हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हो, ठीक है, जहाँ पे हमारे पक्का हाउसेज हों, जहाँ पे हमारे पक्का रोड्स हों, रोड्स में वी आर हैविंग फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, वी हैव stations, railway stations, good ones, like junctions are there. Then we have commercial buildings over there, we have malls, we have good education uh, system over there, like good schools, good universities, and we have like good healthcare systems over there. So urban areas is all about the developed areas basically, right? Where many people live, and all those people, they are basically involved in non-agriculture jobs. That is to say, the jobs which are not related to agriculture. Like, आपने शहरों में किसी को भी खेती बाड़ी करते हुए नहीं देखा होगा, देखा है क्या? नहीं. घर में किचन गार्डन होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, राइट? But you are not growing that those vegetables or fruits or this stuff for masses, isn't it? So we are not doing agricultural jobs in cities or in urban areas. ठीक है, तो अर्बन एरियाज कौन से होते हैं, अर्बन एरियाज क्या होते हैं? दीज आर द एरियाज जो कि जिनको अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसका मतलब हम शहरों के बारे में बात कर रहे हैं या सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं और वो एरियाज डेवलप्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ having education, in terms of having medical facilities, in terms of having commercial areas, banks or roads, bridges, flyovers. Uh, they have airports. So yeah, these areas, urban areas, are basically these type of areas. Okay. Moving further. Okay, let's throw some light on some facts about urban areas.
अब इस स्लाइड में ना मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट फैक्ट क्या आ रहा है हमारा कि एट प्रेजेंट करंटली मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, हमारी पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसकी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? अर्बन एरियाज में रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्ट क्या आ रहा है हमारे पास कि बाय 2050 लाइक 2050 अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन अर्बन एरियाज। बाप रे! अभी तो क्या है कि आधे से ज्यादा है, लाइक 50 प्लस है, तो मे बी 52 53, दैट विल बी अराउंड दिस। बट 2050 तक आते आते 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आ जाएगी। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आ जाएगी या बाकी एरियाज डेवलप्ड हो जाएंगे? आई थिंक दैट वी शुड फाइंड आउट इन 2050 itself. But as to reply to this, I would say कि that means कि हमारे एरियाज थोड़े बेटर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। हो सकता है हमारे कुछ रूरल एरियाज तब तक अर्बन एरियाज की कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। और वाइस वर्सा दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, ऐसे वर्षा भी हो सकता है कि भाई पॉपुलेशन ही इंक्रीज हो जाए वहाँ की। बट आई थिंक रूरल एरियाज वाले पॉइंट के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 1970 टोक्यो एंड न्यूयॉर्क वर द ओनली मेगा सिटीज इन द वर्ल्ड। 1970 में टोक्यो और न्यूयॉर्क ही थी जो कि बहुत बड़ी सिटीज थी पूरी वर्ल्ड में। अब आई नो क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेगा सिटी क्या होती है। तो भाई मेगा सिटी कुछ नहीं होती है। मेगा सिटी मतलब जो बहुत बड़ी सिटी हो, मतलब कि एरिया वाइज बहुत बड़ी सिटी हो और जिसमें कि 10 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं। 10 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग रहते हो, ऐसी सिटी को क्या बोलते हैं? मेगा सिटी बोलते हैं। और 1970 में हमारे पास केवल ऐसी दो सिटीज थी, टोक्यो एंड न्यूयॉर्क। ओके, मूविंग फर्दर, अब हमारे पास थोड़ा कुछ इंडियन सिटीज के फैक्ट्स आ रहे हैं जो कि क्या है। पहला तो है कि हैदराबाद इज द नाइसेस्ट सिटी। हैदराबाद को क्या बोला जा रहा है? नाइसेस्ट सिटी। वैसे हैदराबाद से मुझे हैदराबादी बिरयानी की याद आ गई, यम्मी। ओके, हैदराबाद इज द नाइसेस्ट सिटी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइक इट हैज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि वहाँ की गवर्नमेंट ज्यादा चेंज नहीं होती रहती कि भाई एक बार तो बीजेपी आ गई, एक बार कांग्रेस आ गई, ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज वहाँ की अच्छी हैं। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का प्रॉपरली मेंटेन्ड है कंपैरेटिवली टू अदर का सिटीज एंड स्टेट्स। एंड ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ का अच्छा है, ठीक है। उसके बाद पुणे इज इमर्जिंग एज द प्लेस फॉर अकेडमिया विथ लेस पॉल्यूशन। एंड नाउ ओके, वी नो दैट पुणे इज वन ऑफ द सिटीज लाइक विच इज वेरी ग्रीन। इट्स लाइक around the hills and all, and it's really beautiful. I have been there and it's like paradise kind of thing. बहुत सुंदर है। और इसी के साथ ही वो एज एन एकेडमिक प्लेस की तरह उभर के सामने आ रही है। इसका क्या मतलब? पुणे में आप देखोगे बहुत अच्छे स्कूल्स एंड बहुत अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश होने लगी हैं। सो इट इज इमर्जिंग एज अ प्लेस फॉर अकेडमिया विथ लेस पॉल्यूशन। मतलब एक आइडियल सिचुएशन बन रही है एक स्टूडेंट को वहां पे जाकर के एजुकेशन गेन करने के लिए। पॉल्यूशन कम है एंड ग्रीनरी है, पीसफुल है एंड ऑल, ठीक है। डेवलप्ड भी है बिकॉज वी नो बहुत सारी एमएनसीज वगैरह भी हैं वहाँ पे। बट ओके, कंपैरेटिवली इट इज पीसफुल, इट्स गुड, इट्स नाइस। सो अकेडमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एन इमर्जिंग सिटी, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है लाइक विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? कौन सी सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ लेक्स? किस सिटी को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? एंड हियर आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट वेनिस, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लेक्स, लाइक सिटी ऑफ लेक्स जो कि एक इंडियन सिटी है। तो आपको इसके बारे में भी मुझे बताना है।
और इसी के साथ my last question to you is like, where does Meenakshi Amman temple is situated? कहाँ पर मीनाक्षी अमान टेम्पल सिचुएटेड? ठीक है, आपको मेरे को इस तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देकर बताने हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, वो टीचर का फायदा ही क्या या उस एजुकेटर का फायदा ही क्या जो अपने बच्चों से मेहनत ना कराए? इजंट इट? तो बस ये छोटी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फटाफट से अपने नेट पे सर्व कर लेना है कि इन सिटी ये जिनके भी इसमें नाम है, लाइक पिंक सिटी, सिटी ऑफ लेक्स, और कहाँ पे मीनाक्षी अमान टेम्पल है, ये तीनों चीजें कौन सी सिटीज में सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब मीनाक्षी अमान टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है और पिंक सिटी किसको बोलते हैं और सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, इसकी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। ओके, इसका हम आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे आपको इसके आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, चलो। So I guess these are some of the interesting facts about the urban areas. We cannot cover entire thing, but yeah, I promise you, in here we have covered some of the interesting facts about urban areas, about some of the good cities, and some of the amusing facts about the cities around the globe. Okay, so with this we have reached to our quiz. अच्छा, अब अपन इसको स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको इसका ड्रिल बता देती हूँ। As you can see, like we have a timer over here of 30 seconds and there is a question in front of you. So what we'll be having, I'll just open the slide and the timer will begin. You need to read the question. I'll also read along with you and you need to answer it. You will be writing in the comment section because it's not a live thing, it's a video thing. So yeah, you have to write in the comment section the answer and at the end I'll let you know the answer. Oh, okay. So this is the drill. So for this, let's move back. और अभी मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगी आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, बट नाउ वी नो द ड्रिल। ओके, चलो स्टार्ट। ओके, द क्वेश्चन इज, इन डैश सिटी ओवर 800 लैंग्वेजेस आर स्पोकन। वो कौन सी सिटी है जहां पर 800 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? शायद उससे ज्यादा ही होंगी बट एटलीस्ट 800 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इज इट न्यूयॉर्क और इज इट लंदन? आई होप अभी तक आपने अपना आंसर लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में। नहीं लिख लिया है तो आंसर है न्यूयॉर्क। ओके, ओके, अब मैं जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करूंगी वैसे ही आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा विद ऑप्शन और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका होगा। ओके, जस्ट गेट रेडी एंड योर क्वेश्चन इज दिस, there is one city of the following options that is incomplete without going to its beach. Do you know the name? मतलब आप इन दोनों में से जिस किसी सिटी में घूमने गए हो और वहां पर आप जब तक इसके बीच नहीं जाओगे आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा कौन सी प्लेस है? इज इट वेटिकन सिटी और इज इट रियो डी जेनेरियो? So I think you have written the answer and the answer is Rio de Janeiro. It's in Brazil. It's like very famous for its beaches and it's very beautiful city. You can have a look in the images, just type on Google and you can have very beautiful images of Rio de Janeiro. Okay, so with this moving further, just be ready for your next question and here it is. Okay, the question is, Burj Khalifa, which is the tallest building in the world, is situated in Dubai or London? I think it is the easiest one till yet. So, okay, so okay, fine. I'm waiting for your answer. And I hope you must have typed it in the comment section and your answer must be Dubai. Yes, it's Dubai. Okay, fine. Moving further. Okay. Dash is the largest metropolitan area in the world which has the population of 36.4 million. Is it Paris or Tokyo? ऐसा कौन सा लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है इन द वर्ल्ड जिसका पॉपुलेशन 36.4 मिलियन है?
ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें ये दोनों फैक्ट सही बैठते हैं? एंड योर आंसर मस्ट बी टोक्यो. Okay, I think this is something you knew. You learned new over here. Like Tokyo is the place like which has the largest metropolitan area. बहुत बड़ी सिटी है ये, and इसका population is about 36.4 million. Okay, moving further. Okay, so the next question is which is the richest city in the world in terms of its GDP? जीडीपी का नाम लेते ही मुझे याद आया कि इंडिया तो नहीं हो सकती, बिकॉज राइट नाउ इफ यू हैव gone through the news and all, you must be knowing कि GDP is very low. So okay, so it can't be India, and we don't have it in our options either. First is New York, second is Tokyo. So the answer is Tokyo. Okay, it's again Tokyo. So this is the richest city in the world in terms of GDP. न्यूयॉर्क और टोक्यो आप जनरली देखोगे डेवलपमेंट के मामले में या फिर न्यू चीजें डेवलप या इन्वेंट करने के मामले में हमेशा आगे रहेंगी या आगे पीछे रहेंगी. 19-20, 18-20 इस तरीके का अंतर रहता है इनमें. ठीक है. Okay, so moving further. Okay, we are done with our quiz over here. I hope you liked it, you enjoyed it, and also do remember that I have asked you 3 questions about Indian cities that you need to reply me. Okay? Moving further, planning of a city or its infrastructure. देखो भाई, अर्बन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम ये देखते हैं कि उसकी प्लानिंग कैसे होती है. अर्बन एरियाज या अर्बन प्लानिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, इतना बड़ा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. सिंपल शब्दों में देखें तो इसका मतलब है कि एक एरिया है हमारे पास जिसको कि अर्बन नाम दिया गया है, तो उसकी जो लैंड है और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक एयर, वाटर, उनको प्रॉपरली किस तरीके से यूज किया जाए फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ताकि उनका मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके. ठीक है. एक सिटी होती है, उसमें क्या क्या होता है आप देखो तो एक लोकेलिटी होगी रहने के लिए, गार्डन्स होते हैं फॉर रिफ्रेशमेंट्स, देन मॉल्स होंगे फॉर कमर्शियलाइज्ड एक्टिविटीज, मार्केट एरिया होगा एक, है ना, हमारा मेडिकल एरिया रहेगा जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स होंगे. ठीक है. एक एजुकेशन सेक्टर रहेगा जहाँ पे हमारे काफी स्कूल्स एंड ऑल आ जाएंगे. ठीक है. एक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट कहाँ बनना है, बस स्टैंड कहाँ बनना है. ठीक है. ये सारी चीजें कहाँ होंगी एक अर्बन एरिया में, इसकी पूरी प्लानिंग इज ऑल अबाउट अर्बन प्लानिंग. ठीक है. तो उसकी लैंड को और उसके रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज करें, लाइक एयर एंड वाटर को कैसे यूज करें कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके रहने में फॉर द पीपल. ठीक है. सो अर्बन प्लानिंग डील्स विद द फिजिकल लेआउट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो ये ह्यूमन सेटलमेंट्स ही हैं. ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स उनका घर, उनका कारोबार, कारोबार में कुछ भी हो सकता है. आप बहुत सारी काम करते हैं लोग, कोई बैंक में होता है, कोई फैक्ट्रीज में होता है, किसी के अपने बिजनेस होते हैं, किसी कोई परचेज सेल के बिजनेस में, कोई सर्विस सेक्टर में है, कोई किसी प्रोफेशन में है. राइट. तो उन सबको किस तरीके से कहाँ पे सिचुएट करना है, उनको कहाँ पे कैसे प्लेस करना है, इट्स ऑल अबाउट अर्बन प्लानिंग. ठीक है. और इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और एक बार और इसका ब्रीफ व्यू लेते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सिटीज की, उनको बोला जाता है. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन कैसा है इसका, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है एंड ऑल. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट अर्बन प्लानिंग. तो अभी तक हम अर्बन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं. हमने अर्बन एरिया के बारे में समझा कि दैट इंक्लूड सिटीज. फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े अबाउट अर्बन एरियाज, एंड इसी के साथ हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी अबाउट इंडियन सिटीज. फिर अराउंड द ग्लोब के रिगार्डिंग हमने देखा, जैसे न्यूयॉर्क एंड टोक्यो ये हमेशा सक्सेस और डेवलपमेंट के मामले में हमेशा या तो आगे पीछे ही रहेंगे, या तो न्यूयॉर्क आगे या टोक्यो आगे रहेगा. एंड इवन 1970 में भी न्यूयॉर्क एंड टोक्यो वर द ओनली 2 मेगा सिटीज इन द वर्ल्ड. राइट. फिर हमने बीच सिटी रियो डी जेनेरियो के बारे में पढ़ा. फिर हमने बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है एंड इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, उसके बारे में देखा. तो लाइक वी हैव गिवन स्मॉल लाइट ऑन दिस, ऑन सम ऑफ द इंटरेस्टिंग
facts about the cities around the globe. Right now we have an overview about the urban planning. ठीक है, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अर्बन एरिया का मैनेजमेंट देखना है, उसका गवर्नेंस देखना है। ठीक है, तो पहले ये तो समझे कि अर्बन एरिया में कौन सी चीजें होंगी जिनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, इजंट इट। और उस अर्बन में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले उनको तो हमने समझना पड़ेगा ना, isn't it? तो यही चीजों को अभी हमने क्लैरिफाई किया। ओके, सो अब हम इसके बाद देखते हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा क्या, जो हमारी अर्बन एरियाज में चीजें इंक्लूड होंगी उनको कौन संभालता है, उनको कौन देखता है, यही काम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। ठीक है, तो अर्बन एरिया क्या है, सबसे पहले इट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब मैं आपको रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पॉइंट याद दिलाती हूँ यहाँ पे। There we have studied that villages, जब स्मॉल स्मॉल विलेजेस मिल जाती हैं तो तहसील बनता है, राइट। फिर उसके बाद तहसीलदार आते हैं और तहसीलदार के ऊपर हमारे ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर हमारे कलेक्टर्स होते हैं एंड ऑल, राइट। दैट वाज द हायरार्की ओवर देयर। सो सिमिलरली अर्बन एरिया का भी एक इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके लिए हमने भी क्या किया, अर्बन एरियाज को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हर जो वार्ड होता है उसका एक हेड होता है जो कि काउंसलर इंचार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो काउंसलर इंचार्ज होता है वो उस वार्ड के जो लोकल पीपल होते हैं वही उसे इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वार्ड की अपनी एक खुद की कमिटी होती है। ठीक है, उस वार्ड का हेड तो कौन हो गया, काउंसलर इंचार्ज हो गया, और इस वार्ड की अपनी अलग कमिटी होती है जो कि इश्यूज डिसाइड करती है। जैसे हर एक लोकेलिटी की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ वहाँ की प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइक वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, लाइक वी डोंट हैव प्रॉपर गार्बेज डंपिंग प्लेस, है ना। और वी माइट हैव अ प्रॉब्लम कि वी डोंट हैव अ गुड गार्डन एट आवर लोकेलिटी, राइट। इसी के साथ मेरी कोई फ्रेंड है वो किसी और वार्ड में या किसी और लोकेलिटी में रहती है, तो उसमें उसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहां पे हो सकता है आए दिन लाइट चली जाती हो या आए दिन पानी की सप्लाई का प्रॉब्लम हो, राइट। तो अब हर एक वार्ड की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये कमेटी क्या करती है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को पेन डाउन करती है एंड देन अकॉर्डिंगली उनके बारे में सजेशंस और डिस्कशंस होते हैं, फिर पॉलिसीज बनती हैं। ठीक है, अब इन पॉलिसीज को लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है। ठीक है, तो काउंसलर इंचार्ज के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ठीक है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है ये कौन सा होता है, ये वही स्टाफ होता है जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपने अपने घरों में अपने मम्मी पापा से या अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा कहीं ना कहीं कि जैसे मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, बट बैंक अपना बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा। बेसिकली एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसकी तैयारी कर रहा हूँ, या फिर जैसे पीडब्ल्यूसी के होते हैं, या फिर एनर्जी सेक्टर में कुछ कुछ एग्जाम्स निकलते रहते हैं। तो लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स की बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो जब वो अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं तो जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो जाते हैं तो वो यही वाले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है बेसिकली। ठीक है, तो दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, एंड दे वर्क ऑन द पॉलिसी सो फ्रेम्ड बाय द कमिटीज एंड द काउंसिलर इन चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर वार्ड। ठीक है, उसके बाद जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ही सिट्स इन द ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट होता है, एक ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है हर सिटी में, वहां पर ये लोग बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये एंटायर सिस्टम है, ये जो पूरा एंटायर सिस्टम हुआ ना अपना वार्ड्स वार्ड के हेड एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड एवरीथिंग, कमिटीज, काउंसलर इंचार्ज एंड ऑल, ये जो एंटायर सिस्टम है इसको बहुत बड़ी सिटीज में तो बोला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उससे जो छोटी सिटीज आ जाती हैं उसमें बोला जाता है म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या हो जाती है। इट इज अ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया दैट एडमिनिस्टर्स एरियाज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। मोर देन 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakhs पीपल।
ठीक है। तो जिस एरिया में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी या 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वहां पे हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो भाई जहाँ पे 1 मिलियन से कम हुई तो भाई 1 मिलियन से कम हुई मतलब 10 लाख से कम है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा है। कैप क्या हो गई हमारी? 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम हो गई, तो वहां पे कौन आ जाएगा? या तो म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपालिटी, मतलब वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि जहाँ पे 1 लाख से कम हो तो, अरे भाई अगर 1 लाख से कम होगा तो वहां पे आ जाएगी हमारी सिटी काउंसिल्स। ठीक है। ओके, अब ये तीनों क्या है, कैसे काम करेंगे ना, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Here we are just going to have an overlook about the urban administration। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, लाइक म्युनिसिपल गवर्नेंस जो है इन इंडिया, इट हैज एग्जिस्टेड सिंस द ईयर 1687। सोचो कितना पुराना है। जो म्युनिसिपल गवर्नेंस या जो इन छोटे छोटे एरियाज का गवर्नेंस है, वो कब से एग्जिस्ट कर रहा है? 1687 से कर रहा है। और जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी, दैट वाज मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और उसके बाद हमारी 1726 तक आई थी कैलकाटा और बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी थी? मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। इन सारी चीजों को याद रखना, अपनी मेंटी में आ सकती हैं। ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर। इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी है? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 205 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। Okay, so these are some of the interesting facts about municipal corporation, and we also got to know about what is municipal corporation। ठीक है। तो अभी तक समझ में आया अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या देखा? जैसे अगर हम एक बार प्रीवियस स्लाइड में देखें तो अर्बन एरिया की प्रॉपर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम उसे वार्ड में डिवाइड करते हैं। वार्ड का हेड होता है काउंसिलर इंचार्ज, जो कि वहाँ की लोकेलिटी के लोग ही इलेक्ट करते हैं। उस वार्ड में एक कमेटी होती है जो कि इश्यूज को डिसाइड करती है, जिनके के ऊपर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और वो पॉलिसीज बनती हैं आफ्टर डिस्कशंस एंड सजेशंस फ्रॉम वेरियस पीपल इन द कमिटीज एंड मे बी द लोकल पीपल ऑल्सो। उसके बाद उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराता है काउंसिलर इंचार्ज विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस एग्जाम्स। एंड ऑल्सो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ही सिट्स इन द ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत बड़ी सिटीज में जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन या फिर 10 लाख लोगों से ज्यादा है, जहां पर 10 लाख लोग 10 लाख पॉपुलेशन से कम लोग रहते हैं लेकिन 1 लाख से ज्यादा रहते हैं, वहां पे होती है म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी। और 1 लाख से कम जहाँ पे होते हैं वहां पे होती है सिटी काउंसिल। ठीक है। सो दिस इज ऑल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी गॉट द ओवरलुक अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। So this is all about this, and yeah, with this we have reached to the indication कि let's go back to the slide number 3। ठीक है। और हमारी जो स्लाइड नंबर 3 है वो क्या कहती है? इट वॉज द assurance that what we will be studying in the video, and it was like अब आप मुझे बताओ, क्या हम अर्बन का मीनिंग जानते हैं? आई थिंक यस। हमने कुछ फैक्ट्स देख लिए अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग। यस। मतलब एट प्रेजेंट मोर देन half of the population of the world is living in the urban areas, and by 2050 it is claimed that more than 70% population will be living in the urban areas, right? 1970 में टोक्यो एंड न्यूयॉर्क were the only two mega cities। उसके बाद इंडिया में हमारे पास हैदराबाद है, जो कि नाइसेस्ट सिटी में आती है, जहाँ पर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एजुकेशन फैक्टर्स, एजुकेशन फील्ड अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ सेक्टर भी अच्छा है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे कि हमारी पिंक सिटी कौन सी है, हमारी सिटी ऑफ लेक्स कौन सी है, और इसी के साथ हमारा मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, राइट? उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स भी देखे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे अबाउट द सिटीज अराउंड द ग्लोब विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल क्विज। एंड उसके बाद फिर हमने देखा बेसिकली अर्बन प्लानिंग होती क्या है, और उस अर्बन प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट किसके थ्रू किया जाता है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किया जाता है। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले चीज तो एक बड़े से एरिया को
वार्ड में डिवाइड किया जाता है। उस वार्ड को हेड करता है काउंसलर इंचार्ज, जो कि इलेक्ट होता है बाय द लोकल पीपल ऑफ द वार्ड इटसेल्फ। वहाँ की एक कमिटी होती है जो कि इश्यूज को रेस करती है जिनके की ऊपर काम किया जाना है। उसके बाद जो वो पॉलिसीज बनती हैं उसको काउंसलर इंचार्ज विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट करता है गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्स। उसके बाद जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ही सिट्स इन द ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं बहुत बड़ी सिटीज में, मतलब कि जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख लोगों से ज्यादा है। जिस अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख और 10 लाख के बीच में है वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी होती है, और जहाँ पे 1 लाख से कम है वहां पे सिटी काउंसिल्स होती है। Okay, so this is all we have studied here. Okay, now let's see what is left next. Uh, okay, so next I want to say thank you with a smile. Okay, I hope you like this. You got some of the interesting information about Indian cities and about cities around the globe, and also there is an overlook over the on the topic urban administration. We just have a brief discussion about it, and we have a brief intro for municipal corporation, and definitely in the second video we'll be having a good discussion about municipal corporation and urban administration, right? And with this, I will say sayonara, bye bye, and don't forget to share this knowledge and this video with your friends also. And also like it, and just write in the comment section your answers and anything extra that you want. Definitely do let me know. Okay, bye bye, students. Take care.